Assalamu alaikum, dear student. Uh, in last lecture, we finished an anomalism in a solution. Glucose predominantly exists as closed chain structure because of the cyclization of sugar and additional asymmetric Century is created at C1, that is also anomeric or asymmetric carbon. This leads to formation of two isomers, alpha D glucopyranose and beta D. And we have discussed about that when a hydroxyl group is on the right side, then it will be alpha D glucose. When a hydroxyl group on the left side and hydrogen on the right side, then it will be beta D glucose. Next property of glucose is mutarotation. It is defined as the change in the specific optical rotation representing interconversion of alpha and beta forms of T-glucose to an equilibrium mixture. Here you can see that when the rotation of alpha D-glucose is determined through a solution, that will be specific rotation 112.2 degrees, and the rotation specific rotation of beta D glucose is 18.7 degrees. When both are in equilibrium mixture, then this mixture, where alpha and beta D glucose both are in equal amount, the rotation of the solution will be indicated by 52.7 degrees. This is called as mutarotation. Mutarotation mean alpha converted into beta, beta converted into alpha, and then they reach to a equilibrium mixture with a rotation of 52.7. Here we are again explaining that this is simple D glucose with plus 52.7 degrees. Here both alpha D glucose and beta D glucose in a mixtures are equilibrium because they both cancel each other's rotations. So D glucose has 52.7 degrees mutarotation, and alpha D this and this, and a solution that contain 52.7 means it contains equal quantity of alpha and beta D glucose. Simple. If it contain more alpha D glucose, then solution is not in equilibrium. Of course, degrees will be increased, and if the beta D glucose are more in concentration due to some chemical reaction, then the degrees of mutarotation will be decreases. It will not be in equilibrium. केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं मोनोसेकेराइड्स की, तो ये हमारे पास इसको हम सब कैटेगराइज करते हैं इन 5 किस्म की। फर्फ्यूरल फॉर्मेशन में इसका देखें, जब भी हम किसी की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो सबसे पहले वो टेम्परेचर पीएच को कैसे जो है वो विद स्टैंड करता है। पीएच की बात करते हैं तो रिएक्शन विद एसिड्स एंड रिएक्शन विद बेसिस आता है। तो फर्फ्यूरल फॉर्मेशन में स्ट्रॉन्ग एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं उनके साथ शुगर्स का क्या रिएक्शन होता है उसको हम देखते हैं। इन इन रिएक्शंस की बेस के ऊपर जो है बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन रिएक्शंस जो हैं वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास शुगर एक ग्लूकोज है, आपने उसके अंदर डिटर्मिन करना है कि इसके अंदर कौन कौन सी शुगर जो है वो प्रेजेंट है। रिड्यूसिंग शुगर हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं, तो ये जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये बेस बनती हैं उन टेस्ट जो है उनकी कंडक्शन के लिए। फर्फ्यूरल फॉर्मेशन के अंदर जो है शुगर्स जो है जब स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड जैसे सल्फ्यूरिक HCl H2SO4 HNO नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो इसके 3 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से निकल जाते हैं। जैसे C6H12O6 है तो ये C6H6O3 रह जाएगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो वो फर्फ्यूरल डेरिवेटिव्स बोलते हैं। ज़ाहिर बात है जब वो 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे तो वो एक डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। वो वहीं से हम जो है वो पहचान सकते हैं कि हमारा जो है वो अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया तो सल्फ्यूरिक एसिड किस मॉलिक्यूल के साथ मिलकर फर्फ्यूरल कौन सा फर्फ्यूरल डेरिवेटिव देती है, ठीक है। आगे हम इसका आते हैं। दिस इज़ द बेसिस फॉर फॉर्म। मोलिश टेस्ट करते हैं, सेलिवेन ऑफ टेस्ट करते हैं। ये 2 तरह के टेस्ट इसकी स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ कैसे जी कंसनट्रेटेड एसिड डाला है, 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, और ये देखें जी 1 2 3 4 5 6 जो हैं वो हमारे पास कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 3 वाटर मॉलिक्यूल निकले हैं तो हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल बन गया है ये कंपाउंड। इस कंपाउंड को आगे से क्योंकि अब
एक डी ग्लूकोज में जब उसके बाद जो है इसको कंडेंस करते हैं जब फिनोलिक कंपाउंड्स के साथ, यानी फरफ्यूरल जो डेरिवेटिव है इसको जब किसी भी फिनोल के साथ हम जो है वो कंडेंस करेंगे, कोई भी फिनोल इसके अंदर डालेंगे तो एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स दे देगा। ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स हमें ये बताएगा दिस इज डी ग्लूकोज। ठीक है, अगर यहाँ पर डी मेनोस होता तो उसके वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकलते और कौन सा फरफ्यूरल डेरिवेटिव देता, फिर इसको जो है वो किस कंपाउंड के साथ कंडेंस, मतलब ये इस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से आप देख लें कि डी ग्लूकोज जो है कंसनट्रेटेड एसिड डालेंगे 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ फरफ्यूरल डेरिवेटिव दे देता है, जिसको अगर हम कंडेंस करते हैं फिनोलिक्स के साथ तो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉटोमेराइजेशन और एनालाइजेशन, यानी reaction with alkalis. When glucose is kept in alkaline solution for several hours, it undergoes isomerization to form D-fructose and D-mannose. बहुत देर तक जो है वो अल्कली के साथ आपने रख दिया है तो वो उसके अंदर जो है वो केमिकल चेंज ये आ जाएगी कि वो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन इंटरमीडिएट एनिडायोल। अच्छा, होता ये है कि डी फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हुआ, डी ग्लूकोज डी मैनोज में कन्वर्ट हुआ, लेकिन इन दोनों में कन्वर्ट होने से पहले जो है वो क्या करता है, एक कॉमन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देता है जिसको एनिडायोल बोलते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन कार्बन एटम टू अनदर, मतलब इसका मतलब ये है कि जब अल्कलीज के साथ ट्रीट किया जाता है, मतलब बाय ट्रीटिंग विद अल्कलीज यू कैन प्रिपेयर दी आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज, ये भी बात है। यानी इस प्रोसेस को शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन कार्बन atom to another to produce any diols is known as tautomerization or analyzation. आपने ग्लूकोज लिया, अल्कलाइन सोल्यूशन लिया और रिजल्टेंटली आपके पास बन गया ग्लूकोज फ्रुक्टोज मैनोज, एक मिक्सचर बन गया आपके पास। अच्छा जी, कैसे? सबसे पहले हमारे पास जी ग्लूकोज था, इसमें जो है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना जिसके डायोल का मतलब होता है 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ये हमारे पास CHO3 यानी और ये इसके साथ अटैच है, एक मतलब 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक सिंगल के अंदर प्रेजेंट हो तो एनिडायोल बनता है। ठीक है, अच्छा ये जो डी ग्लूकोज इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से कुछ मैनोज बन जाएंगे, कुछ फ्रुक्टोज बन जाएंगे, तो ये ज़्यादा देर रखने की वजह से मैनोज जो है ये सेकंड कार्बन के ऊपर, या और यू ऑलरेडी नो कि देयर इज़ शिफ्ट ऑफ, ये देखिए ये सेकंड कार्बन है, ये इसके ऊपर इधर से इधर शिफ्ट हो गया, दिस विल बी डी मेनोज। और इसी तरह ये हमारे पास फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज का ये जो यहाँ वाला ओ जो है ये कीटोन है ना, फ्रुक्टोज बेसिकली कीटोन है। ये वाला जो है सेकंड कार्बन के ऊपर जो है एक ओ एच जो है वो उसने जो है वो हाइड्रोजन इधर दे दी और ये ऊपर लग गया, तो ये हमारे पास बेसिकली कीटोन है, फ्रुक्टोज बन गया, राइट। ओके, एनालाइजेशन एंड ऑटोमेराइजेशन आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट and form basis for reducing properties of sugar. बेनेडिक्ट टेस्ट और फैलिंग टेस्ट से हमें पता चलता है, जैसे रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास कॉपर सल्फेट में क्यूप्रस है कि क्यूप्रस जिसके +2 मतलब 2 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकले होते हैं इसके अंदर। एनिडायोल जैसे ही आप इसके अंदर डालते हैं, मतलब वो शुगर विद अल्कली वाला सोल्यूशन डालते हैं तो वो क्या करता है, वो एक जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है इसको, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू क्यूप्रिक ऑक्साइड। जो क्यूप्रिक हाइड्रोक ऑक्साइड है उसके रेड प्रेसिपिटेट्स हो जाते हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड हमारे पास आ जाए, मतलब रेड कलर का जो है वो प्रेसिपिटेट्स आ जाएं, वी विल से दैट कि ये प्रोडक्ट जो है ये डी ग्लूकोज था, ये रिड्यूसिंग शुगर है, डी ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली फ्रुक्टोज मैनोज जब बनते हैं, एनिडायोल्स बनते हैं, दोज आर when glucose oxidizes under proper condition of sugars may form monobasic aldonic acid। ऑक्सीडाइज करते हैं जब उनको हम, मतलब ऑक्सीडेशन उनकी करते हैं, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, addition of oxygen, removal of electron, okay, addition of oxygen and addition of electrons and removal of hydrogen,
सॉरी ये मैं उलट कर रही हूँ, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा जी, ऑक्सीडेशन विद हाइड्रोब्रोमस एसिड जो है डायबेसिक सैक्रिक एसिड बनते हैं। ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड मोनोबेसिक यूरोनिक एसिड बन जाता है। ये देखें जी, ये है डी ग्लूकोज, इसमें हाइड्रोब्रोमिक एसिड आपने डाला तो आपके पास ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। अब ये डेरिवेटिव्स हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं अगर हम ब्लड में डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, जैसे आयरन अगर आप ब्लड में डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं तो वो आपको जो है वो आपके ब्लड को जो है ना वो पोल्यूट कर देता है। तो कुछ ऐसे डेरिवेटिव्स डालने पड़ते हैं ब्लड के, जैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट या ग्लूकोनिक एसिड यूज्ड as a source of calcium. These are given IV fluids rise the calcium levels. नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके साथ कैल्शियम को अटैच करेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है वो ये कैरियर बनेगा कैल्शियम का। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सैक्रिक एसिड। जैसे आप ये दो नीचे जो हमारे पास जो है ये जो अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, इस अल्कोहल को जो अगेन कन्वर्ट कर दें अगर हम COOH में, और ऊपर वाले की जो है वो भी डबल बॉन्ड काट के इसकी एल्डिहाइड के बजाय इसको कन्वर्ट कर दें अल्कोहल में बाय यूजिंग नाइट्रिक एसिड, दैट विल बिकम ग्लूकोसैक्रिक एसिड। एल्डोनिक एसिड एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू जो है ये ग्लूकोयूरोनिक एसिड, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है बड़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में। These are present in heteropolysaccharides and glycoproteins. Glucouronic acid involved in detoxification of benzoic acid, bilirubin and certain drugs। हमारे लिवर के अंदर जो बिलीरुबिन यानी फासद मादे बनते हैं बेंजोइक, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन में भी ग्लूकोयूरोनिक एसिड इन्वॉल्व होता है। Reduction. Both aldoses and ketoses may be reduced by enzymes to correspond polyhydroxy alcohols. Reductions इनकी हो जाती है जब एल्डिहाइड्स की और कीटोसिस की, तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं अल्कोहल्स में। द शुगर अल्कोहल्स फंक्शन मेनली एज इंटरमीडिएट्स इन द माइनर पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है वहाँ पर ये ग्लूकोज जो है ये इन इंटरमीडिएट्स में पोलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स में होती है कन्वर्ट, जैसे सॉर्बिटोल, मैनिटोल, डल डलसीटोल, रिबिटोल। डी ग्लूकोज डी सॉर्बिटोल में, डी मैनोज डी मैनिटोल में, यानी ओल मीन शुगर अल्कोहल। अल्कोहल जब भी डाइओल, तो ये ओल जो है इट्स अ सिंबल ऑफ alcohol. Mannitol is used in asthmatic diuretic to reduce the cerebral edema. बहुत सारे बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे जब दिमाग के अंदर दिमागी सोजिश होती है उसको ट्रीट करने के लिए मैनिटोल यूज़ किया जाता है। सॉर्बिटोल को जो है सॉर्बिटोल तो ये एज अ जो है हमारी बॉडी के अंदर ख़ास तौर पे ये जो लोग जिनकी आईसाइट वीक होती है ना ड्यू टू डायबिटीज़, वहाँ ये होता है कि ये एक्यूमुलेट करता है लेंसेज के अंदर डायबिटिक्स के, और कैटरैक्ट प्रोड्यूस करता है। और मोतिया मोतिया जो है वो आ जाता है जल्दी, जो है वो आंखों के आगे पर्दा आ जाता है। ओनली रिड्यूसिंग शुगर कीप्स दिस टेस्ट पॉजिटिव। Osazone formation, action of phenyl hydrazine. The presence of free carbonyl aldehyde or ketone group in the molecule is essential for the osazone formation. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो हैं एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं जिसमें हमारे पास आ जाती हैं फ्रुक्टोज हमारी एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है, ग्लूकोज हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, और गैलेक्टोज भी हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये इनके अंदर चूँकि ये फ्री कार्बोनाइल प्रेजेंट होता है, सो इसको इनको हम कह सकते हैं कि ये रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। ओसाजोन आर येलो क्रिस्टलाइन डेरिवेटिव्स ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर विद फिनाइल हाइड्रोजन एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर which can be used for identification and characterization of different sugars having closely similar properties. Osazone formed from glucose, fructose and mannose are identical because they are identical in their lower four carbon atoms. जो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और मैनोज के साथ मिलके बनेंगे ना, वो तीनों आइडेंटिकल होते हैं क्योंकि उनके नीचे वाले जो हैं वो कार्बन एटम्स जो होते हैं वो आपस में आइडेंटिकल होते हैं। क्योंकि फ्रुक्टोज़ का भी ऊपर वो सिर्फ फ्रुक्टोज़ और ग्लूकोज़ में जो डिफरेंस है अगर आप बनाएं तो सिर्फ ऊपर ग्रुप का फ़र्क है। एक ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड होता है और फ्रुक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप है, उन दोनों ग्रुप्स के साथ तो करना है रिएक्शन। बाकी की चार की जो हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। इसी तरह मैनोज पे तो क्योंकि मैनोज की सेकंड कार्बन जो है वो इन्वॉल्व है, इसलिए जो है वो पहली दो कार्बन्स तो इन्वॉल्व होती हैं इस रिएक्शन में ये फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ, बाकी की चारों
नीचे से सिमिलर आ जाएंगे, इसलिए जो डेरिवेटिव्स बनते हैं वो सेम बनते हैं। सिर्फ एक शुगर है जो कि नॉन रिड्यूसिंग है तमाम शुगर्स में से, दैट इज़ sucrose. Non-reducing sugar like sugar cannot form osazone due to the absence of the free carbonyl groups. So glucosazone needle shaped होती हैं, माल्टाजाजोन जो होती हैं वो, यानी अगर आपने किसी में डिफरेंस देखना हो कि इसमें रिड्यूसिंग शुगर करेंगे तो हमारे में पता चल जाएगा कि मोनो जो है वो सारी की सारी मोनोसेक्राइड्स हैं, और नॉन रिड्यूसिंग है तो वो सुक्रोज है। बाकी सारी की सारी जो है वो मतलब अगर सुक्रोज की सिर्फ क्वांटिटी हमें पता चल जाए, सुक्रोज माइनस ये रिड्यूसिंग, इस पे भी हम जो है वो क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं शुगर्स के, टोटल शुगर्स में रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग इज इक्वल टू टोटल। सो लैक्टोसा जोन जो है ये भी बनाते हैं, सनफ्लावर पेटल शेप होती हैं, ये देख लें जी। डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज से बन गया ग्लूको हाइड्रोजोन और उससे ओसाजोन, ठीक है। डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज, डी मैनोज, नीचे से तो सारे सेम है ना, ये देखें पहले दो कार्बन में फ़र्क है ना। नीडल शेप क्रिस्टल्स बनती हैं ग्लूकोजाजोन की, फ्रुक्टोसाजोन की, मेनोजाजोन की। पाउडर लफ और टेनिस बॉल शेप बनती हैं लैक्टोसाजोन की, सनफ्लावर पेटल शेप बनती हैं माल्टोसाजोन की, और सुक्रोज तो होती ही नॉन रिड्यूसिंग है, उसके साथ तो कोई कंपाउंड बनाती ही नहीं है, रिएक्ट नहीं करती। अच्छा, ग्लूकोसाइड फॉर्मेशन, व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द एनोमेरिक कार्बन, यानी फर्स्ट कार्बन मोनोसेक्राइड्स की रिएक्ट करती है OH ग्रुप इन अदर कार्बोहाइड्रेट एंड नॉन कार्बोहाइड्रेट लीड्स टू ग्लूकोसाइड फॉर्मेशन। अपने ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस पढ़े हुए हैं माइनर्स में। The bond joining the monosaccharides are called as glycosidic or glycosyl bonds. There are two types of bonds, एक O type bond होते हैं, एक N type bond होते हैं। एक बॉन्ड जो सीधा सीधा बनता है, ठीक है, ये देखिए जी, ये हाइड्रोजन था, ये नीचे OH था, ये फोर्थ कार्बन के ऊपर भी हाइड्रोजन इधर है, OH इधर है, ठीक है। तो दो OH मिलके क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है 1 और 4 के बीच में, तो क्या बनता है, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइल 1,4 का लिंकेज अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज के साथ, ठीक है। इसमें से एक OH गया, इसमें से एक OH गया, तो ये हमारे पास बन गई माल्टोज। दिस इज बेसिकली O टाइप ग्लूकोसाइड बॉन्ड। जो N टाइप ग्लूकोसाइड बॉन्ड होता है ना, उसमें फर्स्ट कार्बन जो है वो किसी नाइट्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाती है, जैसे कि हमारे पास डी ऑक्सी राइबोज शुगर्स या राइबोज शुगर्स के बीच में होता है, ठीक है। जिसके बीच में एक सिंगल O आ जाए, दैट इज़ O टाइप बॉन्ड, और जिसके साथ N टाइप ग्लाइकोसाइड लिंकेज वो होता है जिसमें हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ लिंकेज करे। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, सॉरी कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ 1 2 3, इसने यहाँ OH आई या नाइट्रोजन आई, दिस इज N टाइप ऑफ ग्लूकोसाइड बॉन्ड, जो कि डी ऑक्सी राइबोज शुगर्स या राइबोज शुगर्स जो DNA या RNA में होती हैं ना, जो लिंकेज बनाती हैं, दैट इज N टाइप ग्लूकोसाइड बॉन्ड। फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंस ग्लूकोसाइड्स जो हैं हमारे पास, स्टीरेटोमाइसिन एंटीबायोटिक है जो कि ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ होती है, वहाँ पर है। कार्डियक ग्लूकोसाइड्स हैं जैसे डाइजॉक्सिन है, डिजिटोक्सिन है, ये मसल कंट्रैक्शन बढ़ाती है, यानी ये बताया हुआ है कि ग्लूकोज की दूसरों के साथ जो ग्लाइकोसाइड लिंकेजेस के बाद हमारे पास वो बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। एंथोसाइक्लिन ग्लूकोसाइड लाइक डॉक्सीरियोबिसिन यूज टू ट्रीट वाइड रेंज ऑफ कैंसर, इसी तरह ये कुछ हमारे पास जो है वो ग्लाइकोसाइड्स हैं। टू मॉलिक्यूल जो है वो टू मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ग्लूकोज या ये सेक्राइड्स के दूसरे कंपाउंड्स के साथ हैं, जो कि जिनकी जो है वो इम्पोर्टेंस है फिजियोलॉजिकल, यानी ह्यूमन सेल के अंदर जाके जो है क्या एक्शन प्ले करते हैं। डेरिवेटिव्स हैं मोनोसेक्राइड्स के, फॉस्फोरिक एसिड एस्टर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स जो है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है, ये ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में इन ग्लाइकोलिसिस। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेक्राइड। अमाइनो शुगर जो है ग्लूकोजामीन, ग्लूकोज प्लस अमाइनो एसिड, ये दोनों मिलकर एक अमाइनो शुगर बनाते हैं। डी ऑक्सी शुगर वो जो उधर बनती हैं DNA में, इस तरह sugar acid and sugar alcohols, these are the derivatives of monosaccharides. And thank you very much for today's lecture. Next lecture we will study disaccharides. Thank you very much.